हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। आ दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे. મનથી પણ કોઈ જીવનો બુરો વિચારે ના હોજો રે. मनती पण कोई जीवनो पूरो विचारे ना होजो रे. सामान्य उपकारक बुद्धि अहिंसक चित मन होजो रे. सामान्य बुद्धि अहिंसक चितवन होजो रे. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. जीवने शांति होजो रे. વાણીથી શીતલ માધુરી બેલાડે તે મોટો રે. वाणी शीतल माधुरी बेलाड़े ते मोटो रे. લોકોને સુખ આપે તેવા કાયા તેજુક જોશો રે. लोकोने सुख आपे कार्यांते सुख जोशो रे. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. सर्वे जीवने शांति होजो रे. લક્ષ્મી ગમને તે ધંધામાં મેલવનારો પુનિયો રે. लक्ष्मी के धंधामा मेलवनारो पुनियो रे. પુણ્યોપાચક સત્સંગ માર્ગે કરછે ધનને દોજો રે. पुण्योपार्जक सत्संग मार्गे खर्ची धन ने धोजो रे. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. दुनिया सर्वे जीवने शांति हो रे. હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ જોતો હોજો રે. હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ છોપો હોજો રે. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદરનો ખોરે. मानव काया सिद्ध मंदिर आत्मा अंदर नो खोरे. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને
મને સુખની શાંતિ હો જોરે દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ જોરે. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે શ્રેયા. ત્રિમંત્ર. નહીં. હા સર. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. ખુશી. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુભાવાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. અનુજ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવદારી ઉદ્દેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવનવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. તોરલ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે જીવાત્માનો અભાવ તિરસ્કાર ન કરાવાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. ચિનાય. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંત્રીલી ભાષા ન બોલી જાય, ન બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંત્રીલી ભાષા બોલે તો મને મધુરજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. અનુજ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ કે નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કે પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ કે ચેષ્ટાચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. ખુશી. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. શ્રેયા. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનોય કિંચિત માત્ર પણ અવણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. તોરલ. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. મમતા મામી, ત્રિમંત્ર बुलाइए. नहीं, वो कनेक्शन नहीं है. ओके श्रेया. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વીતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયર્યાણમ, ગાયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોહે સવ સાહુણમ, નમો સવસાવણમ, એસો પંચ નમોકારો, એસો એસો પંચનમોકારો, સવ પાવપણાસણો, સર્વ પાવપણાસણો,
कल्याणं च सर्वेषां मंगलां च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके मीनाक्षी बा। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे की पढ़ाई में और सत्संग मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरे साबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल, दादा भगवान की जैसे मेहनत पर्सनालिटी बन पाऊं। घूमते घूमते आया ना इसीलिए हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदाक्ष। ओके खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल के है सच्चे। दिल के हैं कच्चे। दिल भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ए करिश्मा लेट क्यों आ गए आज? दादा मम्मी ने दुकान से सामान लेने वो यहीं पर थी, सत्संग सुन रही थी। ओके नहीं दादा। मोनिका खुशी यू कैन नॉट आर्ग्यू बड़ी दीदी के साथ। ओके 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 चिनाय। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્चिदानंद। दक्ष। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आपल्याला को दक्ष लागे. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट और दक्ष टेम्पररी है. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल और रिलेटिव है. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके इसको हिंदी आता है? साक्षी आपको हिंदी आता है? कौन सा? स्टडी वाला। ओके स्टडी वाला बोलो। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता से अध्ययन करने से नहीं आपने पढ़ा नहीं, आप गुजराती में करो। ओके मोनिका। हाँ जय सच्चिदानंद।
स्वस्थ शरीर हमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति दे। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से, नैतिकता से, अज्ञान करने से उत्कृष्ट गुण देगी, अपने लक्ष्य को सफलता और खुशी को प्राप्त करवाएगी। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति दे। नित्य और ईमानदारी से सभी संचालन करने से मेरा मन मजबूत होगा, मेरा चित्त केंद्रित रहकर मेरे 3 लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होगा, मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा व्यवहार सुधार होगा, दादा भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके जगत कल्याण में निमित्त बनूंगी। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया, हेल्थ। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वस्थ शरीर આપણને શારીરિક, માનસિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, બૌદ્ધિક, ભાવનાત્મક તેમજ આધ્યાત્મિક રીતે મજબૂત બનાવે છે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. આપણે હવે ગોખી કાઢવાનું. ખુશી, હેલ્થ. હેલ્થ કે સ્ટડી? સ્ટડી. જય સચ્ચિદાનંદ. અભ્યાસમાં સખત મહેનત, પ્રામાણિકતા અને નૈતિકતા ઉત્તમ ગુણ આપશે. મારા લક્ષ્ય સફળતા અને સુખ પ્રાપ્ત કરાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, શ્રેયા. જય સચ્ચિદાનંદ. દરરોજ અને નિષ્ઠાપૂર્વક બધા સત્સાધનો કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે, મારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મારા 3 ધ્યેયો સિદ્ધ કરાવશે, મારી શક્તિ વધારશે, મારું જ્ઞાન વધારશે, મારું વ્યવહાર સુધારશે, દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ મેળશે અને એમના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. ઓકે, सबको મેળવ છે રિવાઇઝ ફાઇલ જો. हाँ. ओके, अजय कितना चैप्टर किया, कितना बाकी है? दक्ष। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 2 चैप्टर करे थे कंप्यूटर के और मेरे अभी टोटल 70 लेसन बचे हैं। 17 तक से बा। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 4 चैप्टर्स किए हैं और मेरे 38 चैप्टर्स बाकी हैं। खुशी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने वो पहले जो रिवाइज किए थे वो फिर से रिवाइज किए थे और मेरे 3 चैप्टर्स बाकी है। तो आप ऑलरेडी सेकंड रिवीजन स्टार्ट किया? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। श्रेया। जय सच्चिदानंद। मैंने आज 4 चैप्टर किए और मेरे 3 चैप्टर बाकी है। Oh, pretty soon revision number 2. Okay, Doral. जय सच्चिदानंद। आज मैंने 2 चैप्टर्स किए, अभी मेरे 9 मोर हैं। 9, okay. करिश्मा, आज क्या किया आपने? करिश्मा, आपने आज कुछ पढ़ा था पीछे वाला, जून जुलाई अगस्त सितंबर वाला? नहीं, आज नहीं पढ़ा था। तो बोलो ना, क्या किया था? कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश। English. What did you study in English? Prose, poem, non-detail, supplementary, ये सब पढ़ा था। Okay.
ओनली वन सब्जेक्ट किया था? हाँ, एग्जाम चल रही है इसलिए। अच्छा, एग्जाम चल रही है, ओके ओके। मोनिका? हाँ जी सचिदानंद, मेरे टोटल चैप्टर 74 है और उसमें से 54 कंप्लीट हुए हैं, 20 बाकी हैं। अव्यय? मेरे टोटल 40 चैप्टर्स है और उसमें से 33 कंप्लीट हो चुके हैं और 14 लेफ्ट है और आज 4 किए थे। कितना बाकी है? 14। 14। कितना टोटल कितना है? टोटल 47। 45। तो आप कब स्टार्ट किया रिवीजन? और मैंने जनवरी में किया था। हो तो कोई आप रिपोर्ट तो नहीं देते थे, आज क्या किया आपने? आज मैंने हिंदी का 1 चैप्टर और इंग्लिश के 3 चैप्टर। और दूसरा कौन सा? इंग्लिश के 3 चैप्टर और हिंदी के 1 चैप्टर। और इंग्लिश और हिंदी। हिंदी, ओके ओके ओके। तो अभी आज सत्साधन, ओके। तो सत्साधन में अभी आज हम सत्साधन की थोड़ी बातें करेगा। सत्साधन में आज कंप्लीट किया कि नहीं किया वही बोलने का है। श्रेया? हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने आज सत्साधन कंप्लीट नहीं किया। क्यों? मैंने आफ्टरनून की मैंने 9 कलम रह गई। टोरल? हाँ, तो आज मेरे तो कंप्लीट नहीं हुए। सभी के? हाँ, खुशी? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरे सत्साधन कंप्लीट है। सेवा? हाँ, आज मैंने कंप्लीट नहीं किया लेकिन सोने से पहले कर दूंगी। ओके। दक्ष? नहीं, दक्ष अनम्यूट करो, साउंड नहीं आता है। अव्यय? मैंने आज कंप्लीट नहीं किए, सोने से पहले कर दूंगा। ओके। तो सत्साधन कंप्लीट क्यों नहीं होता है? वो अपना स्केड्यूल में नहीं होता है? दादा, हाँ बोलो दक्ष। जय सच्चिदानंद, आज आज मुझे सत्साधन कंप्लीट नहीं हुए थे क्योंकि मेरी 9 कलम एक बार नहीं हो पाई थी। क्यों? आप टीवी देखते थे? दक्ष, आप टीवी देखते थे? हाँ, टाइम नहीं मिला आपको कि नहीं करने का था? ओके। और जो कंप्लीट नहीं होता वो स्केड्यूल नहीं होता है आपका? अव्यय? हाँ, कितने तो आपको स्केड्यूल नहीं होता है सत्साधन का? कब करते हैं आप? मैं सुबह थोड़ा करता हूँ, फिर जो बाकी रहता है वो दोपहर को करता हूँ। क्यों थोड़ा करते हैं? स्कूल का टाइम हो जाता है इसलिए। टाइम नहीं मिलता है सुबह? कितना बजे करते हैं आप? मैं लगभग 6:30 बजे स्टार्ट करता हूँ। तो कितना लगता है सत्साधन करने में? लगभग 30 मिनट्स। 30 में तो 6:30 से 7 कंप्लीट नहीं कर सकते? कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। खुशी, करिश्मा? हाँ, हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने सत्साधन कंप्लीट नहीं किए थे। क्यों? क्यों मस्ती में टाइम बिगाड़ा? नहीं, तो किधर गया टाइम, किधर गया? आप कब टाइम सत्साधन कब करते हैं आप?
हाँ हाँ इवनिंग को करती हूँ। कि सुबह टाइम नहीं मिलता है? नहीं। क्यों? लेट होती है इसलिए? हाँ 7:30 को उठती हूँ। कितने बजे? 7:30। वो कितना बजे सोते हैं? 10 o'clock या फिर 10:30। 10:30 और 7:30 उठते हैं। ओके मोनिका, जल्दी नहीं उठ सकते हैं? मम्मी उठाती है पर उठाती हूँ। दादा के पास शक्ति मांगने का 7 बजे उठ के 7:30 बजे तक सत्संग हो जाना मांगता है। मोनिका जय सच्चिदानंद। आज मेरे सत्साधन पूरे नहीं हुए। मेरी अभी एक बार 9 कलम और शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना एक बार बाकी है। और नमस्कार विधि मैंने 40 टाइम्स पहली कलम बोलनी चाहिए, वो सिर्फ मैंने सिर्फ 10 टाइम्स ही बोला। ओके, जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। हाँ जय सच्चिदानंद। आपने सुना स्टडी का और सत्साधन का रिपोर्ट? जी हाँ, थोड़ी बातें करो बच्चों के साथ। सब बच्चों को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पहले तो आप लोग थोड़ा बहुत सत्साधन करते हो, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस सत्साधन है क्या, ये हमें समझने की जरूरत है। जैसे हमारे शरीर में कोई अगर बीमारी होती है तो डॉक्टर हमें जो दवाई लिख कर देते हैं, वो जिस तरह से दवाई का हमें कोर्स करने का रहता है तो हमारी तंदुरुस्ती अच्छी हो जावे, इसीलिए हम टाइम टू टाइम डॉक्टर को फॉलो करते हैं, दवाई लेते हैं। यस और नो? हाँ करते हैं। लेते हैं, बराबर ना? क्योंकि हमें अनुभव है कि ये बुखार, ये बीमारी के कारण मुझे मजा नहीं आता है, खाने की मजा नहीं आता है, खेलने की मजा नहीं आती है, सोने की मजा नहीं आती है, तो हमारा सुख चला जाता है। तो इसी तरह ये जो दादा भगवान है और उन्होंने जो नमस्कार विधि 9 कलम जो कुछ भी दिया है वो अपूर्व है। क्या है? अपूर्व महीना कोई भी शास्त्र में आप उठा के देखोगे तो ऐसी शॉर्ट नमस्कार विधि और 9 कलमों की भावना, प्रातः विधि, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना आपको कहीं दिखने को मिलती है? आपने कहीं देखा है? और दूसरा, ये सभी धर्मों का सार और खुद दादा भगवान, मतलब कि एम पटेल ज्ञानी पुरुष और अंदर प्रकट हुए दादा भगवान, उनकी कृपा से ये सब चीज हमें हाथ में मिली है। हम एक डॉक्टर को एक शरीर की अच्छाई होने के लिए, बीमारी से मुक्त होने के लिए हम डॉक्टर की हर बात मानते हैं। जो अगर ये ज्ञानी पुरुष ने हमें दी है, ये सत साधन दिए हैं, उनकी अगर जो हमें कीमत समझ में आ जावे कि कुछ भी हो जावे लेकिन मुझे ये कंप्लीट करना ही है, अगर कई बार नहीं भी हुआ तो अंदर उसको प्रायश्चित होना चाहिए कि नहीं, कल से तो मुझे परफेक्ट करना ही है। क्योंकि हम सब लोगों की आज्ञा उठाते हैं, हम फ्रेंड्स की बातें मानते हैं, टीचर्स की बातें भी मानते हैं, जो हमें पसंद है वही लोगों की बातें मानते हैं। जो यही अवतार, यही हमारा जीवन, जो अगर ज्ञानी पुरुष की ये पंचामृत सत्साधन जो हमने हृदयस्थ किया और सिंसियरली फॉलो हम करेंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब जो करेंगे, तो याद रखना कि मूर्त परमात्मा ने दी हुई ये चीज है, ये न भूतो न भविष्यति ऐसी चीज है।
और उसके पीछे बहुत बड़ा हमारा खुद का कल्याण समाया हुआ है। तभी देवी देवताओं का राजीपा इसमें समाया हुआ है। तो ज्ञानी पुरुष का राजीपा, उनकी कृपा और उनकी आज्ञा जो हमें जाने अनजाने में मिल गई है, तो मैं तो आपको एक ही बात बताऊंगा कि ये जो सत साधन है वो आप सिंसियरली जो भी फॉलो करेंगे उनका काम हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि ये सत साधन में आपको कोई दिक्कत आती हो। हाँ, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमें ना बोलती है, मुझे पता है, हमें करने नहीं देगी। बाद में करूंगा, ये करूंगा, कंटाल गया मैं, ये हुआ, मजा नहीं आता है, क्योंकि हमें उनकी वैल्यू समझ में नहीं आई है। इसीलिए दादा भगवान कहते हैं कि इंसान को पैसों की वैल्यू समझ में आती है, दुनिया की हर चीज की वैल्यू समझ में आती है, लेकिन ये ज्ञानी पुरुष की आज्ञा और उन्होंने जो दी हुई चीज, उनके वचनों की आज्ञा समझ में आना मुश्किल होता है, और उसमें किसी की गलती नहीं है। लेकिन आप लोग इतना सिंसियरली सत्संग में आते हो, तो करने से पहले बात समझ लो, ये सत साधन है क्या, और ये करने से क्या फायदा है, और इसे कैसे क्यों करना है। दूसरा कि ये आप लोगों को, हम सबको जो ये चांस मिला है, तो हमें उसका पूरा फायदा उठाने जैसा है। देखो, राम भगवान चले गए, कृष्ण भगवान चले गए, महावीर भगवान चले गए, और एम पटेल दादा भगवान भी जो देहधारी परमात्मा थे, उनका देह भी चला गया। कई अवतार पुरुष इस जगत में आते हैं और चले जाते हैं, और उन लोगों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ वो चीज रख के जाते हैं। लेकिन जो पुण्यशाली होता है, उनके हाथ में आती है, ये बात समझ में आती है, फिर वो सिंसियर होता है और अपना काम निकाल लेता है। आपको जो पढ़ाई की कीमत समझ में आएगी, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप पढ़ो, क्योंकि हर चीज का परिणाम उनकी कीमत समझने जैसी है। और पूरा मनुष्य जीवन, बचपन से लेके कोई भी उम्र हो, हमें सिर्फ समझने के लिए जीवन है, फिर करना नहीं करना वो अलग बात है। तो आप लोगों से मैं ये कम नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, वो सुन के तो मुझे आनंद हुआ, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको अंदर दुख होता है कि मैंने, ये दादा भगवान ने जो दी हुई चीज है, उनको मैं सिंसियर नहीं हूं। ऐसा दुख होता है आपको अंदर, कुछ होता है, कुछ न कुछ होता है। जब तक कोई भी अच्छी चीज के लिए, पढ़ाई के लिए, एक्सरसाइज के लिए, विधि के लिए, सत्साधन के लिए, जो जो हमारा फायदा, हमारा कल्याण, हमारा हित समाया हुआ, ऐसी चीजों में जो हमारे खटकारा नहीं होता है, तो आप लोगों को, हम सबको ये समझने की जरूरत है कि अंदर कोई ऐसी चीज है जो मेरा नुकसान कर रही है, मुझे उल्टे रास्ते पे ले जा रहा है, तो मुझे सावधान होने की जरूरत है। नहीं तो हर चीजों का, विज्ञान का मतलब यही होता है कि हर चीजों का रिजल्ट आता है, परिणाम आता है। आपको समझ में आया? अभी ये साइंस का युग है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, साइंस के स्टूडेंट्स भी हो, साइंस का सब्जेक्ट आता भी होगा, तो आपको पता होगा कि ये फंडामेंटल होता है। साइंस में हर चीज में फंडामेंटल होता है, प्रिंसिपल्स होता है। तो जो भी गलती करेगा, तो दादा भगवान ने खुद ने बताया है कि लेबोरेटरी में जाके कोई भी ऐसे केमिकल के अंदर जो हाथ डालेगा, तो जो केमिकल उसका हाथ जला देगा। तो हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए कि ये केमिकल के साथ कैसे डीलिंग किया जाए। इसी तरह हमें पढ़ाई के बारे में, फ्रेंड सर्कल के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में, खाने पीने के बारे में, संसाधन के बारे में, हमें हर चीज को ये समझने के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए।
नहीं निकलता है तो जब भी समय मिले तो ये बात को समझने की जरूरत है। इसीलिए दादा भगवान हमेशा सत्संग में एक ही बात ज्यादा कहते रहते थे, यहां आके आप समझो। मैं आपको पूछता हूं कि सत्साधन किसके लिए है? मम्मी पापा के लिए है, फ्रेंड्स के लिए है, दादा भगवान के लिए है, किसके लिए है? हमें हर जगह पे ये सवाल हमें पूछना है। हम खुद को सवाल करने की जो प्रैक्टिस आपको पड़ेगी कि ये चीज किसके लिए है और मेरे क्या फायदा नुकसान के लिए है। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी, वो भी ज्ञानी पुरुष हो गए, उनका एक सेंटेंस है, कर विचार तो पाम। वो हिंदी में आप सोचोगे तो उसमें से कुछ न कुछ आपको फायदा होगा। पॉजिटिव सोचोगे, इस चीज को समझोगे। तो इसी तरह मैं आपको फिर से ये विनंती करता हूं कि आप इस उम्र के समय की वैल्यू समझो, समय गवाओ मत, जितना हो सके समझने की कोशिश करो, तो आपका निश्चय अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा। अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। मैं कितना भी आपके साथ घंटों तक बातें करता रहूंगा, लेकिन ये बातें ही है। लेकिन जब तक आपके दिल में ये सवाल उठेगा कि नमस्कार विधि क्या है, मैं किसको नमस्कार करता हूँ, ये किसने दिया है, इससे क्या फायदा है, आप समझे? नव कलम क्या है, पढ़ने का क्यों है, मैथ्स क्या है, इंग्लिश क्या है, साइंस क्या है, मुझे क्यों पढ़ना है, क्यों मैं ये स्टैंडर्ड में आया हूँ, ये सब्जेक्ट मेरे लिए क्यों जरूरी है, तो कच्चा से पक्का करने की क्यों जरूरत हो। हर सवाल आपके अंदर जब जब उठता रहेगा तो मैं मानता हूं कि एक दिन आप परफेक्ट हो जाओगे। आपको समझ में आया? ठीक जो है मैं क्या? एक छोटी भी बात बताता हूं कि दादा भगवान को उनका आत्मा का अनुभव हो गया, उनको मुक्ति का अनुभव हो गया, फिर भी उन्होंने एक बात सोची कि सब कुछ मेरे पास है, लेकिन इस जगत को चलाने वाला कौन है? और जब तक उनको मुझे उसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक मुझे मोक्ष में जाना नहीं है। दूसरा, वो कितने अवतार निकाले, एक एक साइंस के जगत को चलाने वाला कौन है और उसको कैसे इस शब्दों में रखा जाए, एक शॉर्ट सेंटेंस में। दूसरा, उनका ये लक्ष्य था कि रास्ते पर चलने वाला आदमी जो हो, जिसको शास्त्र का ज्ञान ना हो, जिसकी कोई क्वालिटी ना हो, जैसा भी हो, लेकिन रास्ते चलने वाला आदमी को जब मैं मोक्ष दे सकूंगा तभी मैं मोक्ष में जाऊंगा। दूसरा, जब छोटे थे तब वो उनका लक्ष्य था कि जो मुझे मिला उनको सुख होना चाहिए, उनको फायदा होना चाहिए। भगवान प्रकट ऐसे नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आप सबको विनंती करता हूं कि कुछ अच्छा लक्ष्य के साथ पढ़ाई करो, अच्छे लक्ष्य के साथ वो सत्साधन करो, अच्छे लक्ष्य के साथ जीवन जीवो, उसमें कोई कठिनाइयां नहीं है। समझ में आया ना? क्योंकि जब तक आप एक बार सब जगह से सोचने की और देखने की, जब आपकी एक शक्ति खुली हो जाएगी और एक्टिव हो जाएगी, तब आपको लगेगा कि ये गलत चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, गलती करने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छी चीज को मिस करने की जरूरत नहीं है, उनको सिंसियर रहने की जरूरत है। वो आप अपने आप डिसाइड करोगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसको क्या बोला प्रदीप दादा ने, किसको याद है? कुछ भी याद है? अव्यय, अव्यय, हमको सत्साधन को समझना चाहिए। अगर जब भी हम सत्साधन समझेंगे तभी हम परफेक्ट बनेंगे। सत्साधन कैसे समझेगा? वो क्या चीज है, किसको मालूम है? मिताक्षी बा, मिताक्षी बा,
हाँ, मैं सत्साधन करने से हम दादा जैसे बन पाएंगे, उसमें हेल्पफुल होगा। ओके, इतना याद रहेगा तो बहुत हो गया। श्रेया। सच्चिदानंद, जो हम सत्साधन का परिणाम हमको सब समझ आएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। वेरी गुड। खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हमें सत्साधन का वो सिद्धांत पता चलेगा तो हम हर रोज सत्साधन करेंगे। ओके, दक्ष। दादा, मेरा पॉइंट व्यू था कि हमें डेली सत्साधन करना चाहिए। क्यों? उससे हम परफेक्ट रहते हैं। Very good. Okay, Jai Sachidanand. We'll see you tomorrow. जय Okay, Jai. सच्चिदानंद। Very good, जय everybody.